you know? Don't know, sir. Pardon? Don't know, sir. Okay. Writing exams are there. Okay. What is that? Exams. Exam. College exam. Okay, college exams. Because in the morning also, the exams are going on in certain colleges. A few students entered and then left. What is it? Okay, students. Listen carefully, students. A copper wire is given to you whose resistivity is given to you as 1.7 into 10 raised to minus 8 students ohm meter. Density of copper 8,900 kilogram meter cube inverse, and an aluminum wire of resistivity 2.8 into 10 raised to minus 8 ohm meter. Density of aluminum 2,700 kilogram meter cube inverse. Now they have same mass per unit length. Students, they have same mass per unit length. That is lambda for aluminum is equal to lambda for copper. That is mass per unit length is same. Ratio. The question asks the students the ratio of resistance per unit length of aluminum and copper wires. The ratio of resistance per unit length of aluminum to that of copper wire is. Options I'll give it to you. Options are 1 is to. What is that D? Pardon? Sir, what is D? These density of copper unit like na kilogram per meter cube दिखा है ना मैम? Okay. I'm getting it. And density of aluminum. Sorry, density of aluminum D. D is for density and rho is for resistivity. Options are 1 is to 2, 1 is to root 2, 1 is to 2, 2 is to root 3, and 2 is to 3. Students, hope the question is clear to all of you. I repeat the question, students. Resistivity of a copper wire is given to us 1.7 into 10 to minus 8 ohm meter. Density of copper is 8,900 kilogram per meter cube. Resistivity of aluminum is 2.8 into 10 to minus 8 ohm meter. Density of aluminum is 2,700 kilogram per meter cube. The mass per unit length of both of them is same. You have to find out the ratio of resistance per unit length of aluminum to copper.
Does anyone? Yes, any of the students who can get it? Sir, 1 minute. So is a question clear with all of you? Yes, sir. Yes. Can I solve it for you all students? Sir, 1 minute. Sir, Yes. so can you solve, please? Why you're not able to get it? Deep, what about you? Jason, what about you? Sorry, Norman, what about you? No. So when they ask you with respect to resistance per unit length, you know the mathematical relations. और क्या दिया है? Mass per unit length same है. So resistance per unit length R is equal to students rho L by A. So resistance per unit length will be equal to rho by A. No, why? Yes, sir. Again, is that clear? ना ये Yes, sir. किसी भी हाल में मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए था, तो ये तुम्हें लैम्बडा से मिलेगा. यानी mass per unit length, students, mass per unit length of we consider for copper is equal to mass per unit length we consider is of aluminium. How is density written as? Density is equal to mass upon volume. क्या ये clear है students? हाँ, Mass sir. में मैं density into volume लिख सकता हूँ. हाँ, Upon length upon density upon volume and length of aluminium. तो density तो है, volume is what? Area into length. Length
डेंसिटी एरिया इंटू लेंथ ये किसके लिए है? ये कॉपर के लिए है। ये किसके लिए है? ये एल्यूमिनियम के लिए। कैन आई कैंसिल दिस? Yes, देखो sir. एरिया का रेशियो मिला कि नहीं मिला? हाँ हमें क्या सर. चाहिए? हमें क्या चाहिए? ध्यान से सुनो सुनो, हमें आर पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ किसका चाहिए था? एल्यूमिनियम टू रेजिस्टेंस पर लेंथ ऑफ कॉपर। यानी मुझे किसी भी हाल में डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय, तो इनटू एरिया ऑफ कॉपर ऊपर आएगा, डेंसिटी ऑफ कॉपर नीचे आएगा, एंड मुझे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ कॉपर टू एरिया ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए। तो यहाँ पे कैन आई गेट द एरिया? यस सर, एरिया ऑफ कॉपर ये होगा, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम नीचे आ जाएगा, तो वो क्या होगा? डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर। तो इसके लिए सब्स्टिट्यूट नाउ बैक हो भैया। तो ये क्या हुआ तुम्हारा? रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, इंस्टेड ऑफ एरिया ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम के लिए क्या लिखोगे? डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर। नाउ कैन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर? हाँ स्टूडेंट्स, हाँ सर. Deep, is it clear? Norman, is it clear? Yes, sir. Yes. Norman, yeah. Norman has put forward the answer B. Absolutely correct. Sanika, why are you late? Sorry, sir. No, what's the reason for it? हाँ Sanika, सारे लेक्चर्स लेट शुरू होते हैं क्या? हाँ स्टूडेंट्स, my lectures normally, if in case if it's a 4 o'clock, I haven't been that much late. It'll be 4, 4, 4, 5, maximum 4, 6, not beyond that. अगर बहुत लेट होने वाला होगा तो definitely I'll tell you in advance कि it'll be late enough in that case. And I'm if in case if I'm 4 to 5 minutes starting late, just to see to it that the students should come on time. Now see, here comes Raj Goel. Can I erase the students? Yes, sir. Who's this Yash Borekar? ये कौन है? MLDW. No students, do you all know him? MLDW. Third first time name. First Yes, time है sir. ना? Yash हाँ Borekar. सर. First time है ना? हाँ सर. तो ऐसा करता हूँ, इसको लेता हूँ, फिर उसको मैं वापस बुलाता हूँ मैं। मेरा गया इवेंट अवे। I'll log the meeting now. Yeah, if you all want, you all can leave, but you all will not be able to enter in now. Sir, if due to network issue, we only हाँ सर. left then. हाँ कहाँ से नेटवर्क इशू? दीप नॉटी बॉय, मेरे को पता था तू ये बोलने वाला है। दीप सर पहले भी एक बार हुआ था मेरे साथ दूसरे लेक्चर में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके बस। तो तू तेरा इतने सारे तेरे अच्छे फ्रेंड्स है, हर्ष फ्रेंड है तेरा, नॉमन है, एक उनसे एक टेक्स्ट करवा ले करके। बस भाई, बस तू जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, बस मैंने अनलॉक कर दिया, बस बस एंजॉय कर। Okay, fine, students. Let's go for it, students.
Next question, please. Now listen carefully, students. Okay. Options I'll give it to you. A 40. ये आया वापस, यश बोरकर वापस आया. Okay, students. Option A, I'll give it to you as 40 watts. Option B is 60 watts. Option C is 100 watts. And option D, all burns All. equally bright. All burns equally bright. Students, now listen carefully. The question is, students, तीन बल्ब मैंने दिए तुम्हें. एक है 40 वॉट का, okay? दूसरा है 60 watt, and the next one is 100 watt. Students, there are three bulbs given to you: 40 watt, 60 watt, and 100 watt bulb, and they're designed to work at 220 volt mains. Okay, designed to work on 220 volt main supply. Which bulb will burn more brightly if they are connected? तुम्हें पूछा गया है which bulb will burn more brightly. The answer is gonna burn more brightly if connected in series. If connected in series and supply voltage is 220 volt. क्या question clear है students? Yes. हाँ sir. Which bulb will be more brighter in that case? Yash Borkar. Hello, Yash Borkar. Who are you? Hello. Unmute. Yash. Hello. Yes, Yash Borkar. सॉरी सर, मेरा भाई यूज कर रहा था तो मैं नाम नहीं बदला. हाँ, मेरा भाई यूज कर रहा था तो मैं नाम नहीं बदला. तेरा भाई यूज कर. What is your brother's name? यशपोर. हाँ, 1 मिनट सर, मैं अभी चेंज कर रहा. what's your name? आपका नाम क्या है? मेरा नाम दक्ष राय है. हाँ, दक्ष राय. दक्ष. ओके, तो ये किसका आईडी यूज कर रहे हो तुम? ये मेरे भाई का, मतलब कजिन. भाई अपना आईडी यूज करो ना. यानी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे कि सर कोई बाहर का आ रहा. मैं तो लेने वाला भी नहीं था. ये बेचारे सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली हर्ष है, दीप है, नौमन है, सारे सनिका है, ये सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सर ऐसे मत करो, आप ले लो. कोई अच्छा ही स्टूडेंट, कोई पढ़ने वाला ही होगा जो लेक्चर में आता है ना. नहीं पढ़ने वाले लेक्चर में नहीं आते. मुझे समझाया, बहुत समझाया, इसलिए मैंने लिया. मैं तो मैंने मीटिंग भी लॉक कर दी थी. हाँ, यश थैंक्स बोलते सबको. थैंक यू. ओके, अभी आ जा. अभी तो तेरा आईडी लेके तो आ जाओ वापस. आई विल टेक यू इन. ओके ठीक है सर. ओके, गुड बॉय. सही स्टूडेंट था रे. He was. Okay, friends.
How do you do it, students? Yes, anybody? Sir, 100 watt. No, it's incorrect. Answer is 40 watts. Yes, Norman, absolutely correct. Norman, कैसा है? Sir, I found out the individual resistance of the three. Then Absolutely found the current. Absolutely correct. And power is directly go. मैंने क्या बोला था students in the last lecture only मैंने सारे series में E is equals to V square by R. yes I V square by R I square into R. Sir, I first used V The square first by R. resistance. Then I found it at the current. Okay, agreed. Friends, power is equal to see power. Listen carefully, ध्यान से सुनना. Everybody ये बहुत ही अच्छा question है. ध्यान से सुनना. मुझे ये पता करना है कि 40 watt bulb, 60 watt bulb और 100 watt bulb दिया है तीनों सीरीज में कौन सा ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा. Students, first of all, you have to keep in mind कि सारी सीरीज में तो करंट कांस्टेंट होगा. तो अगर मैं पावर की बात करूं, यानी पावर का मतलब it's the glow, the which burns more brightly, one which consumes we consider more power, that will be more brighter. So power अगर सीरीज में है तो students it will be I square into R, यानी power directly proportional to resistance होगा students. यानी सिर्फ तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब. जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा. अब ये रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये जो दिया ना मैंने, bulb can be made to work at 220 volt में, यानी हर एक बल्ब का मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई 220 वोल्ट है. Students, this is rating of the bulb, ये रेटिंग है. तो अगर मेरा पहला बल्ब P1 है, students P1 is my power of the first bulb. Power is equal to what we consider it's V square by R1 and it is rated at 220. So what is the resistance of the first bulb? So I'll simply consider V square by P1. That's what Norman did it. V square यानी क्या होगा, 220 into 220 divided by how much, 40. He got the resistance for this. फिर उसने क्या किया, एक छोटे वाले का लिया और एक मैक्सिमम से दो को कंपेयर करो ना, उसे पता चल जाएगा. Now go for the next one. अगर मैंने R2 लिया students, so it's V square upon P2, that is 220 into 220 upon what exactly power is again 100. तो ये 484 होगा. ये आंसर स्टूडेंट्स ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है as compared to this. That means resistance of 40 watts is greater than this, so 40 watts will burn more brightly. Is it clear? Sir. Can I erase it? Yes, sir. मैंने अपोजिट किया था इसका. अच्छा, opposite कर दिया. तो मुझे लगा जहाँ पे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उधर करंट कम होगा, इसलिए सर. मैंने वही कभी बताया था तुम लोगों को स्टूडेंट्स. इसलिए दो बल्ब जब भी सीरीज में होता है उनका इफेक्टिव पावर रेसिप्रोकल में होता है. And when two bulbs are in parallel, the effective power is in series. And when I made it very clear, ये क्वेश्चन वैसा था, जो पहला स्टेटमेंट था ना स्टूडेंट्स, वो क्या था मालूम है, बल्ब का रेटिंग. स्टूडेंट्स अगर कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम देता है और वो बोलते हैं दैट इज अ बल्ब इज रेटेड, ध्यान से सुनना, अ बल्ब इज रेटेड एट 60 वॉट 220 वोल्ट. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया, उसका मतलब कि ये बल्ब को मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई 220 वोल्ट तक वो ऑपरेट कर सकता है, ये उसका रेटिंग है. स्टूडेंट्स ये रेटिंग जो होगा ना वो बल्ब के ऊपर लिखा होता है 60 वॉट 220 हाँ वोल्ट. सर. उससे तुम क्या फाइंड आउट कर सकते हो, उससे सिर्फ तुम एक ही चीज फाइंड आउट कर सकते हो, रेजिस्टेंस. बस दैट्स ऑल.
क्योंकि अंदर का जो कॉइल है उसका उसका रेजिस्टेंस तुम इससे फाइंड आउट करोगे। अगर किसी ने पूछा करंट, यू कांट, इसके लिए तुम सप्लाई वोल्टेज के लिए जाओगे। अगर मैं बोलूँ मैक्सिमम करंट कितना चाहिए तो वी कैन गेट इट, लेकिन एक्चुअली अगर सपोज ये 60 वॉट फिर मैंने कनेक्ट कर दिया तो 110 वोल्ट, यस इट कैन, लेकिन रेजिस्टेंस तो मुझे कांस्टेंट मिलेगा ना, यानी आर की वैल्यू मैं यहाँ से लूंगा, यहाँ से जो आर मिलेगा वो मैं यहाँ पे यूज करूंगा स्टूडेंट्स, आई कैन यूज दैट। Are you getting it? So that's a value which you can get it as a standard value inside it. Do take care when you're solving questions onto this. सर हम्म, पर हमारे घर पे जो कनेक्शन है तो पैरेलल में होते हैं ना हाँ सर, घर पे जो कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल में होते हैं ना। हाँ सारे पैरेलल में। हाँ सर, तो उधर उल्टा होगा ना फिर इसके लिए सर। मतलब बल्ब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो कम ग्लो करेगा। हाँ, तो दैट इज व्हाट ना, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज, उनका कंजप्शन भी ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज फिलामेंट बल्ब हाई रेजिस्टेंस वाले। हाँ सर। Are you getting it? उनको करंट कंजम्पशन भी ज्यादा चाहिए, तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होती है, कंजम्पशन या इलेक्ट्रिसिटी स्मॉल। Okay students, the next one, okay, listen carefully students. An electric kettle has two coils. When one coil is connected to AC mains, the water in the kettle boils in 10 minutes. When the other coil is used, the same quantity of water takes 15 minutes to boil. When the other coil is used, the same quantity of water takes 15 minutes to boil. How long will it take for the same quantity of water to boil if the two coils are connected in parallel? Hope this question is clear, students. Sir, can you repeat one? Yeah, speak it. Answers, students. An electric kettle has two coils. Okay, it has two coils. When one coil is connected to AC mains, when one coil is connected to AC mains, okay, this is the coil which is connected to AC mains. Means the water in the kettle, AC means the water in the kettle boils in 10 minutes. यहाँ का जो पानी है, it takes time 10 minutes to reach 100 degrees Celsius. Okay, boils. When the other coil is used, इसके जगह पर अगर मैंने दूसरा coil use किया, okay, for the same quantity of water, यानी mass of water is constant. Okay, this is your first coil and this is your second coil. If other coil, when the other coil is used, the same quantity of water will now take 15 minutes to boil. Now it takes, this is T1, this is T2, 15 minutes to reach at 100 degrees Celsius. Of course, this one is also connected to AC major. समझ में आया? क्या ये part clear हुआ students? सर समझा। How long will it take? अभी क्या पूछा? How long will it take for the same quantity of water? अभी मैंने वही क्वांटिटी ऑफ वाटर लिया है, क्वांटिटी ऑफ वाटर उतना ही लिया है, यानी मास यहाँ पे भी कांस्टेंट है, मास यहाँ पे भी कांस्टेंट है, मास यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तीनों कैसे मास कांस्टेंट है। सो हाउ लॉन्ग, यानी यहाँ पे मुझे टाइम चाहिए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बॉयल टू रीच एट 100 डिग्री सेल्सियस if two coils are connected in parallel, that is your coil 1 and coil 2 are connected in parallel to the same supply 1 and 2. Is the question clear now? Options I'll give it to you now, students. Please pay attention. Option A, 6 minutes. Option B, 12 minutes. Option C, 18 minutes. And option D, 24 minutes. I repeat, students. An electric kettle has two coils. When one coil is connected to AC mains, it boils water in 10 minutes. When other coil
is connected to AC mains for the same mass of water, it takes 15 minutes. Now, if the two coils are connected in parallel for the same quantity of water, how much time it will take for it to boil? सर ऑप्शन है क्या बोल रहे हो? ऑप्शन क्या बोला? सर ए A. Are you sure? Yes, rest of them. Yes, sir. 6 minutes. What's the answer? Sir, 6 minutes. Absolutely correct. It's a correct answer. So it's a correct answer. 6 minutes. Yeah. Now, Yes, can sir. you tell me who wants to answer? कौन आंसर देगा? अरे अभी दोनों ने आंसर दिया तो now anybody can want to answer or not? कि मैं ही आंसर दे दूं? Sir, हाँ बोलो. sir, power consumed will be same na. हाँ, power consumed will be okay. Equal. Why power consumed will be same? See students, अगर of course what he's saying it, it's fine, we can consider that. लेकिन अभी एक simple logic students, यहाँ पे पानी गर्म हो रहा सर है. उधर 10 मिनट लग रहा है और उससे कम ही लगेगा ना, क्योंकि दो मतलब वो अगर कॉइल होंगे तो सर 10 मिनट से कम ही लगेगा ना, ऐसा क्यों? क्योंकि सेम मास है. अरे लेकिन अगर दोनों मैंने कॉइल को पैरेलल में ले लिया है तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होगा, हाँ सर. है ना? तो उसको ज्यादा करंट चाहिए. हाँ, यस सर. पानी को बॉईल करने के लिए आया ना. हाँ सर. लेकिन वोल्टेज तो तू उतना ही सप्लाई कर रहा है, तो कहाँ से तेरा करंट बढ़ेगा? तो तेरे को ज्यादा टाइम तेरे को चाहिए बॉईल करने के लिए. हाउ कैन इट बी लेस देन 10 मिनट्स? हर्ष तूने क्या सोचा? वापस बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुन. क्या ये दोनों पैरेलल में है? हाँ सर. तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा. पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है. हाँ सर. ओके, तो रेजिस्टेंस कम होगा तो ज्यादा करंट फ्लो होगा इसमें. हाँ करेंगे, लेकिन ज्यादा करंट फ्लो होगा इन दैट केस, बट विल इट हैव दैट मच सफिशिएंट करंट इन ऑर्डर टू बॉईल द एंटायर वाटर? नो दैट इज सर. व्हाट द वाटर कैन बी. यस सर पावर डबल हो जाएगा. पावर क्या हो जाएगा? डबल. हाँ सर. हाउ कैन यू से पावर डबल होगा? सर आपने बोला था पैरेलल में ऐड कर देंगे P1 + P2. ऑफ कोर्स, तो पावर मींस यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ करंट बढ़ जाएगा. तुम्हारा पावर यानी पावर ऑफ द ये हेलो पावर ऑफ कॉइल की, हम पावर ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं. गर्म करने के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें मेंस की जरूरत है. स्टूडेंट्स ये सोचो ना कि तुम्हारे यहाँ पे प्लग पॉइंट जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है. तीनों में कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है. स्टूडेंट्स तुम्हें क्या करना चाहिए? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस.
यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज है, चेंज नहीं हो रहा। प्लीज, सप्लाई वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा तीनों केस में, लेकिन यहाँ पे जो पानी बॉयल हो रहा है, मास ऑफ द वाटर इज सेम एंड बोथ ऑफ देम आर हीटेड एट 100, तो तेरे को यू हैव टू से दैट सर इन दैट मींस द हीट जनरेटेड इन द फर्स्ट केस is exactly equal to the heat generated second case. Why? Because in both the cases it's reaching to the boiling point. Even the heat generated third case is also exactly same. Why not? ये भी तो boiling point पे आ रहा है ना, जो शायद किसी ने नॉर्मन ने बोला with respect to power. Yes. Can be taken. Why not? Can be taken. Power, लेकिन कौन सा power? Supply power के बारे में बात कर रहा हूँ. अभी सपोज Yes. मैंने हीट के हिसाब से लिया, चलो मैंने हीट के हिसाब से लिया, व्हाट एक्सैक्टली फॉर्मूला फॉर हीट जनरेटेड इन दिस केस? तो हीट कैन बी गिवन बाय फॉर्मूला, ध्यान से सुनना, हीट के तीन फॉर्मूला थे, VIT जूल, V square T by R जूल, I square, हाँ, तो यहाँ पे मैं अभी V square T by R लूंगा मैं, ये देखो, ये पहले केस के लिए, ये सेकंड केस के लिए, ये थर्ड केस के लिए, आ गया तुम्हारा आंसर। सारों में वोल्टेज तो सेम ही है ना, वोल्टेज कैंसिल हो जाएगा। Students, are you getting it now? Students? Yes. Now can I take R1 by R2 क्या होगा? Students, R1 by R2 if I have to consider, then in that case what exactly you get it? I'll get it as equal to what? R1 by R2 will be equal to T1 by T2. So can I take the ratio of this case? Yes. T1 by T2. What exactly? It's 10 by 15. Is that clear? That is 5 2s are and 5 3s are. So I got the ratio of what? R1 by R2. Now how do I go about with it? अभी देखो थर्ड केस में क्या है, ये जो R3 है ना स्टूडेंट्स, ये दोनों का पैरेलल का आंसर है स्टूडेंट्स, ये R3 यानी ये रेजिस्टेंस है पैरेलल, क्योंकि दोनों ही पैरेलल में, पैरेलल का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? कैन यू नो व्हाट इज द आंसर फॉर पैरेलल? तुम बोलोगे सर इट्स R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर। कैन यू गेट दिस आंसर? तुम्हें R1 R2 का रेशियो मिल गया हाँ स्टूडेंट्स? यस सर। Yes. नाउ कैन आई सब्स्टिट्यूट बैक ओवर हियर? यहाँ पे तुम्हें ये वैल्यू मालूम है, किसी एक के साथ में तुम इक्वेट करो ना, ये रेशियो या तो इससे इक्वेट करो या ये रेशियो इससे इक्वेट करो। तुम्हें ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, क्या T3 मिलेगा? हाँ सर। तुम्हें ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, कैन यू गेट T3? यस, एंड द आंसर T3 विल बी हाउ मच? 6 मिनट्स। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सर मुझे समझा नहीं हुआ एच कैसे इक्वल होगा। क्या बोल रहे हो? एच कैसे इक्वल होगा एक बार समझाना। ये तुम्हारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल यहाँ पे आएगा ना, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल यहाँ पे आएगा इन दिस केस। सर नहीं, एच कैसे इक्वल हुआ? हीटिंग इफेक्ट। क्यों? एनर्जी। हेलो, सारे 100 डिग्री सेल्सियस पे ही तो जा रहे हैं, सारे बॉयल हो रहे हैं ना। द अमाउंट ऑफ हीट, हेलो, मास ऑफ वाटर वाज सेम इन ऑल द केसेस। अगर तूने 3 कंटेनर लिए, तीनों में सेम मास लिए, आई गेटिंग इट, और तीनों 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच रहे हैं, तो कहने से द क्वांटिटी ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय ऑल द 3 मास ऑफ वाटर इज द सेम। यस सर। और यहाँ पे हीट कौन सप्लाई कर रहा है? कॉइल सप्लाई कर रहा है, एक्सटर्नल सोर्स की वजह से कॉइल सप्लाई कर रहा है, क्योंकि वो हीटिंग कॉइल है। क्या ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। अभी देखो, अभी तुम्हें सॉल्व करना हो तो तुम ये भी, अभी देखो मैं ये रेशियो लेता हूँ, चलो मैं ये दो रेशियो लेता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। T2 को मैंने लिखा है, T2 क्या हमारा 15, ये मैं R2 ऐसे ही रख रहा हूँ, हमें T3 चाहिए था, अपॉन RP की जगह मैं क्या लिखूंगा? R1 R2, ये होगा R1 प्लस R2। कैन आई कैंसिल R2? यस स्टूडेंट्स, व्हाट एग्जैक्टली T3? व्हाट इज T3? 15 into R1 upon R1 plus R2. Friends, can I get this answer? Why not? Am I getting the ratio of R1 by R2, students? Huh? So what is R2 by R1? 3 by 2. Can I use componendo? क्या ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ? हाँ स्टूडेंट्स, यस है ना? सर। 2 by 5 तो 5 3 जा, 3 2 6 आ गया आंसर।
फ्रेंड्स मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हिसाब से लिया है, मैंने रेशियो से लिया है यहाँ पे, और कुछ नहीं किया मैंने। फ्रेंड्स क्या क्लियर हो रहा है? Yes. ओके, कैन आई इरेज इट? So 1 minute. दक्ष समझ में आ रहा है? दक्ष, दक्ष तो है कि नहीं है? See, now he's not replying. Sanika, are you there? Sanika, are you understanding? Yes, sir. Shaili, what about you? Braj, what about you? Shaili, Braj. Very good. Can I erase now, students? Yes, sir. Done. Done, sir. Okay. So listen carefully. Yeah? The next question, students. A 12-volt, 24-watt tungsten filament. 12-volt, 24-watt tungsten filament. That means bulb. Okay. Is supplied the current from incense. Current is supplied through N cells, N electric cells, which connected in series, N cells in series. यानी ये जो बल्ब है उसको सप्लाई करने के लिए मुझे N cells की जरूरत है. Okay. Each cell, each electric cell has EMF 1.5 volt and has internal resistance of 0.25 ohm. Question is, what is the value of N? What is the value of N in order that the bulb runs at its rated power? So that bulb runs at its rated power. Options are 6, 8, 12, 16. Students, क्या ये question clear है?
Now students, an electric bulb is rated at 12 volt 24 watts. Current is supplied through n number of cells through it in series. Okay, हर एक सेल का EMF 1.5 वोल्ट दिया है and resistance is 0.25 ohms. ऐसे कितने cells तुम connect करोगे so that it can make the bulb to run at its rated power. So n transfer numerical value can be 6, 8, 12, 16. Students, question clear हुआ? Yes. got the see, Deepas instantly put the answer. Absolutely correct. Deep. Anybody else? Yes, anybody else? Deepa's got the answer. Absolutely correct, Norman. Friends, the answer is C. Yes, can anybody give me the answer? तो बोल सकता है हाँ तो बोलो. सर पावर इज इक्वल टू वी आई. Yes. सर तो उससे करंट निकालेंगे, फिर पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, तो उससे रेजिस्टेंस, फिर आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर वाला फॉर्मूला. नहीं, पावर इज इक्वल टू क्या किया तूने? वी आई यूज करके करंट निकाला सर. Okay, so that is the current required by one of the bulb. Agreed? यस सर. Okay, fine. Absolutely correct. Students, see one thing. ये concept मैं बता चुका तुम लोगों को. अगर suppose मैंने कुछ cells दिए तुम्हें having interrelations और मैंने series में दिए तो कुछ याद आ रहा है? और मैंने अगर ऐसे n number of cells, अभी मैंने पाया ना n number of cells दिए, सिर्फ एक ही लाइन दिया स्टूडेंट्स, और मैंने यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर दिया. ये वाली बात है, ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हुआ. तो मैंने पूछा था स्टूडेंट्स इसमें करंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो तुमने क्या बोला था? I is equal, what I told you, I is equal to E net upon capital R plus small r net. अगर देखो कैपिटल आर तो मिल सकता है रेजिस्टेंस, ये कंसेप्ट है. पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो कैन आई गेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब? यस. यस. इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी. हाउ मच इज वी स्क्वायर? सर 12 into 12 और कितना है 24. सो 12 2 तो करने से 6 ohms ये रेजिस्टेंस होगा. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, यस सर. अभी देखो ईएमएफ क्या होगा फॉर एन नंबर ऑफ सेल्स, यानी ई नेट क्या होगा? एन E net इनटू का- ई. हाँ, ये n into E, और E कितना है 1.5 है ना. R net क्या होगा? n times R, यानी n into 0.25. क्या ये क्लियर हुआ? What? Yes. यस सर. Okay. Now what I need to find out n number of bulbs. अभी मुझे करंट चाहिए. What is the current required? मैंने रेजिस्टेंस निकाल दिया. How to get current? करंट के लिए तुम क्या करोगे? P is कितना? equals to I. हाँ क्या what did you say Norman? V is equal to R है? Yes. Of course. स्टूडेंट्स देखो अभी ये करंट क्या है मालूम है स्टूडेंट्स? ध्यान से सुनना. ये वाला करंट नहीं स्टूडेंट्स. व्हाट इज द ऑप्टिमम करंट रिक्वायर्ड फॉर अ बल्ब फॉर इट टू ग्लो? ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. ये देखो ये जो रेटिंग है ना V12 वोल्ट, ध्यान से सुनना एवरीबॉडी. स्टूडेंट्स पावर 24 वोल्ट. उससे मैंने क्या बोला था? उससे तुम्हें रेजिस्टेंस मिलेगा. कैन आई गेट करंट आल्सो? यस, पावर इज इक्वल टू व्हाट? V into I. Yes. तो यहाँ से भी तो मिल सकता है ना तुम्हें. I get it? ये देखो ये एक फॉर्मूला होगा. So 24 is equal to 12 into I. So current कितना हुआ? 2 ampere. Agreed? This is one way of getting. Second, did you find out the resistance of the bulb? Yes. Do you know the maximum voltage supply? 12 volt. तो अगर मुझे V मालूम है,
रेटिंग का और मुझे रेजिस्टेंस मालूम होता है, कहना यूज V इक्वल टू R इंटू आई। क्यों नहीं? क्या यहाँ पे I मिलेगा? मिलेगा ना। V by R, how much is V given to me? 12. How much is resistance to bulb? 6. देखो यहाँ पे भी आंसर 2 एम्पियर आ रहा है। Friends, are you getting it? यानी मुझे रेटिंग से क्या मिला? बल्ब का रेजिस्टेंस मिलता है एंड व्हाट इज द ऑप्टिमम करंट रिक्वायर्ड। यानी स्टूडेंट्स, अगर अगर ये बल्ब के अंदर 2 एम्पियर से ज्यादा करंट गया तो फिलामेंट बर्स्ट हो जाएगा, टूट जाएगा ओवर हीटिंग की वजह से। अगर 2 एम्पियर से कम जाएगा तो वो ग्लो ही नहीं करेगा। तभी जाके हम बल्ब को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ये जो टंगस्टन फिलामेंट है उसको हम फिक्स्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्यों फिक्स्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं? क्योंकि उसको एक फिक्स्ड करंट चाहिए, ऑप्टिमम करंट चाहिए। तभी जाके रेजिस्टेंस के बारे में जब मैंने थियोरेटिकली बताया तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस होते हैं और वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं। वेरिएबल में भी नोन होता है और अननोन होता है। ये तुम्हारा थियोरेटिकल अप्रोच आ गया इसको। अभी तुम्हें आई मिल गया, हाँ सर आई मिल गया, तो इसको क्या लिखूंगा मैं? 2। ओके, ई क्या होगा तुम्हारा? यानी n टाइम्स 1.5 अपॉन कैपिटल आर कितना मिला? 6 प्लस व्हाट इज स्मॉल आर? 10 टाइम्स 0.25। Can I get the value of n? We'll get the value of n is 12. Friends, क्या ये क्लियर हुआ? Yes. Can I erase this? Yes. 1 minute sir. सर वो क्यों नहीं आया? सर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कैसे कंफ्यूज हो गई? Since I'm doing all these particular problems from here, ये सारे यहाँ से कर रहा हूँ तुम्हारे problems. सर कौन सा बुक है? It's for AI triple E. ये पुरानी है. Sir, they have come in exam before. All. हाँ, these are from exam papers. Previous years की जितने भी हैं 15, 20, 25 साल और दूसरे नए भी हैं. But I'm picking up only those. यानी it's not that too much in that case where you can lose your confidence, but somewhere you can yes get it. वैसे वाले questions और एग्जाम्स में ऐसे पूछते हैं. सर मतलब ये मीडियम क्वेश्चन है। क्वेश्चंस है, सारे सारे अच्छे क्वेश्चंस है, लेकिन आई एम पिकिंग अप आल्सो गुड क्वेश्चंस इन दैट. लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं लोग एग्जाम में. सर डन। ओके. Okay, students. Next question. I'll give you the options, students. 0.8 into 10 raised to 3 seconds. Option B. 1.6 into 10 raised to 3 seconds. Option C. 3.2 into 10 raised to 3 seconds. Option D. 6.4 into 10 raised to 3 seconds. All multiples of 8. Friends, question here. A uniform copper wire of length 1 meter. So copper wire, which is uniform, length 1 meter. Okay. Cross-sectional area 5 into 10 raised to minus 7 meter square. That's a cross-sectional area. यानी ये वाला area. So it's pi r square वाला. Carries a current of 1 ampere. Carries a current of 1 ampere. Now assume that there are, assume, ये assumption है. Assume there are 8 into 10 raised to 28 free electrons. 8 into 10 raised to 28
free electrons per meter cube. Per meter cube. So this is number of electrons per meter cube, students. In copper, that is in which wire? In this copper wire itself. My question to you is, how long will an electron take? Listen carefully. How long will an electron will take to drift from one end of the wire to the other? How long will an electron take time? Will an electron take time to drift from one end to the other end of the wire? Then I say this is negative, this is positive. Electric field is in this direction. How long will it take? I need to get that time. क्या question clear हुआ students? Yes. Once again, I'll speak on students. The question is, a uniform copper wire of length 1 meter, area of cross section 5 meters minus 7 meters square. The current flowing through it is 1 ampere. Assume there are 8 into 10 to 28 electrons per meter cube of the wire. How much time will an electron take in order to drift from one end of the wire to the other end of the wire? Options are given to you. How long? The time diya hai students. 0.8, 1.6, 3.2, 6.4. All are in second. It's very easy, straightforward question. Formula मालूम होगा तो तुरंत आएगा students. And I've already given you the formula earlier. Yes, anybody? Sir, D, option D. Absolutely. ये क्या है straightforward था? हाँ sir. Formula क्या है students? मैं बताओ what is the formula I'm going to use? I upon NA. Since drift velocity is equal to current density upon NA. हमने relation निकाला था. Current density is equal to what? Current per unit area. बस और क्या था? What is velocity? Distance 30 upon. is equals to L by BD. हाँ, लेकिन अभी तुम L कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, कि नहीं होगा? हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो तुम्हें एरिया दिया है, देखो एरिया पर यूनिट लेता है, कैंसिल होगा ये एरिया पर. ये तो जो दिया ना, अस्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम के हिसाब से दिया स्टूडेंट्स. नाउ प्लीज पे अटेंशन, अभी ध्यान से सुनना. ये मेरा और ये मेरा रेशियो आ गया. मुझे टाइम चाहिए तो कहना पुट टी ऑन द अदर साइड. तो क्या होगा? n into e into a into l upon what exactly I. What is a into l? It's volume. Am I getting it? हाँ sir. That's how we can consider. So now substitute divide this. Can you get the answer, students? The answer would be option D. Is it clear?
Yes, Yes, sir, clear. इरेज करूँ मैं अभी? yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, now please pay attention. A metallic wire has a resistance of 2 ohms at 50 degrees Celsius. Resistance is 2 ohms at 50 degrees Celsius and resistance of 2.04 ohms at 100 degrees Celsius. Since what is the temperature coefficient of resistance of metal? Alpha. Options I'll give it to you. 10 by 49, 20 by 49, 30 by 49, 40 by 40. Into 10 raised to minus 3. So it's Kelvin inverse. Is it clear? Since is the question clear? Resistance is 2 ohms, theta Yes. 1 is 50. Okay, fine. With your answer. Yes, I'll get the answer. So option B. Option B. Yes. Option C. B. Of course, absolutely correct. Anybody else who's got getting it? It's a Deep, you changed it or what? First D you तूने बोला. नहीं सर वो previous question का था. Okay, fine. नहीं, B is correct. अब students ये Yes, sir. इतना क्यों सोच रहे हो? इतना क्यों सोच रहे हो? अल्फा का फॉर्मूला चाहिए. मैंने हाँ. फॉर्मूला दे चुका था तुम लोगों को. R is equals to R naught 1 plus alpha. हाँ, अल्फा is equal to what? Is equal to R2 minus R1 upon R1 into delta theta. खत्म हो गई बात. Yes. Students, तुम्हारा ये तुम्हारा डेफिनेशन कैसे जाता है स्टूडेंट्स? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन किया है ना, तो वो बोलो ना तुम. थर्मल एक्सपेंशन का डेफिनेशन बोलो ना. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन स्टूडेंट्स इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डिग्री सेल्सियस राइज इन टेंपरेचर डेल्टा टी. अब यहाँ पे इंक्रीज इन लेंथ, यहाँ पे इंक्रीज इन रेजिस्टेंस आएगा अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और टेम्परेचर आगे खत्म हो गया. R2 minus R1, ये R1 पीछे आ जाएगा. डिफरेंस इन टेम्परेचर इज 50. सॉल्व करो, यू विल गेट द ऑप्शन इज बी.
Listen carefully. Two identical cells. Listen carefully. Two identical cells of EMF. Two identical cells of EMF. 1.5 volt internal resistance. Need to find out. Connected in parallel. Connected in parallel. Okay. And provides current. This provides current to two resistors of 7 ohm each join in parallel. Two resistors of 7 ohm connected in parallel. A very high resistance voltmeter reads the terminal voltage of the cell. Which a high voltmeter resistance read 1.4 volt. So it's a high voltmeter resistance reads 1.4 volt as terminal voltage. Question asked, what is the internal resistance? Hope the question is clear, students. 0.2 ohms, B 0.3 ohms, C 0.4 ohms, D 0.5 ohms. Friends, I'll repeat the question once again. Two identical cells of EMF 1.5 volt connected in parallel provides current to two resistors of 7 ohms connected in parallel. A high voltmeter resistance reads 1.5 volt as terminal voltage. Find out the internal resistance. Yes, anybody? Deep, what happened? So 1 minute. Absolutely correct, Norman. Very good. Norman has got the answer. Shall we discuss? Sir, 1 minute. Mhm.
Shall we discuss? सर सर 1 minute डालना हो जाएगा तो तुरंत बोल सर, मैं बोल रहा हूँ। सर ऑप्शन है नहीं, गलत है। Deep, what about you? Deep, what about you? Sir, not get. क्यों नहीं मिल रहा है? ये तो बहुत ही इजी था। नॉर्मल कैपिटल में Yes, sir. बोलो। Sir, I found out the total internal resistance. Then I देखो, found, हाँ बोलो। sir, I found it in each cell का internal resistance. They are connected in parallel. यस, कनेक्ट इन पैरेलल। स्टूडेंट्स अभी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इतना इतना सिंपल लॉजिक है। तुम्हें ये मैंने दिया है टर्मिनल वोल्टेज। स्टूडेंट्स टर्मिनल वोल्टेज किसके लिए होता है? इज इट फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल? हाँ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स टर्मिनल वोल्टेज किसके लिए होता है? इंटरनल या एक्सटर्नल? सर इंटरनल कहाँ से इंटरनल? ड्रॉप वोल्टेज इंटरनल के लिए हो रहा है। क्या थ्योरी पढ़ा? टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज एक्सटर्नल, यानी V is equal to R into I। कैन यू फाइंड आउट करंट? और मैंने बोला था करंट एक्सटर्नली और इंटरनली हमेशा सेम रहता है। पूरा एक्सप्लेन किया था सिंपल वोल्टेज सेल का कंसेप्ट। तो कह रहा है ये 1.4 है। हाउ आर दीस टू रेजिस्टेंस ऑफ व्हिच आर एक्सटर्नल, हाउ आर दे कनेक्टेड इन पैरेलल? इसका आंसर क्या होगा पैरेलल का? 1/7 plus 1/7 2/7, so get 3.5. 3.5। Can I get the current 1.4 by 3.5 यानी 14 by 35 यानी करंट कितना होगा? 7 2 and 7 5 जा 0.4 एम्पियर। क्या ये क्लियर हुआ? ये करंट पूरा हाँ कंप्लीट सर्किट मिल गया। मुझे क्या चाहिए? स्मॉल आर चाहिए। स्मॉल आर कैसे मिलेगा सर? ड्रॉप वोल्टेज मिल गया तो आएगा ना आंसर। और ड्रॉप वोल्टेज कैसे मिलेगा? 1 ड्रॉप point वोल्टेज E माइनस कैपिटल E बोले स्मॉल आर। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ सर Yes. EMF versus terminal voltage। EMF कितना है? Two identical cells, each of one को। How are they connected? Are they connected in parallel? सर तो यही अगर आएगा दो सेल्स, हाँ E आएगा ना, दोनों का E आएगा तो ये E रहेगा, तो ये 1.5 ही होगा। ये कितना है? ये 1.4 है। तो what exactly is 5? Small v. What is small v? I'm getting it as 0.1. Now am I getting 0.1? Yes. This interval we found out. Yes. This current given to me. Yes. 0.4. So what's my answer? Small r will be equal to how much? Students, क्या आंसर है? 0.25. 0.25। तो डी कहाँ से आया? हाँ Sir, total internal. अच्छा, सॉरी, वेरी गुड नॉर्मन। हाँ ये बिकॉज हाउ आर दीस टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल R/2 यस, आई गेटिंग इट। तो R/2 हो जाएगा। स्टूडेंट्स आई गेटिंग इट इन दिस केस? इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड स्टूडेंट्स 1 upon R effective is equal to 1 by R, 1 by R, 2 by R we can. Is that clear? That's how we consider. What exactly R will be equal to? Twice effective we can consider, or effective is equal to R/2। स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? Yes. Yes, sir. ये तुम्हें इफेक्टिव मिलेगा, तो वी कैन गेट आंसर अकॉर्डिंगली फॉर इंडिविजुअल। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर है इरेज कर दो अभी मैं इसको। तो तो 1 देखो minute स्टूडेंट, ये क्या था? ये पूरा थ्योरेटिकल था कि नहीं था? जो मैंने बताया E इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v, कैपिटल V इज इक्वल टू RI, स्मॉल v इज इक्वल टू RI। उसी का हम लोग ने कंसेप्ट लिया। दो सेल्स पैरेलल हैं और वो ड्राइव कर रहा है करंट एक्सटर्नल में। इंटरनल पूछा है।
करो erase. So 1 minute left. Sir, done. Okay, students. Now I need to speak about the last concept of a particular part, and then we'll be going for Kirchhoff's law, students. Okay. Now, in this part of the current electricity, students, we had two important devices, एक था ammeter. इसके भी related students MCQs होता है. You're going to get our voltmeter. Okay. ये दोनों इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट्स कहाँ से बनाया गया है? It's from a device called as a galvanometer, students. Galvanometer. So the galvanometer was the first ever instrument which was invented by the physicist. और ये जो galvanometer है students, it's a current detecting instrument. ये करंट को डिटेक्ट करेगा, मेजर नहीं करेगा स्टूडेंट्स. अगर छोटा सा भी करंट कोई सर्किट के अंदर है तो वो बहुत अच्छा डिफ्लेक्शन दिखाएगा. That is a working of a galvanometer, students. The galvanometer was the first ever instrument invented by the physicist. Galvanometer में से students ammeter और voltmeter का invent हुआ है. अगर ये जो working of galvanometer है students, working of galvanometer तुम लोग पढ़ोगे MEC में, magnetic effect of electric current. वहां पे तुम पढ़ोगे स्टूडेंट्स वर्किंग ऑफ galvanometer. और शायद I don't know about it, students. Did I do it with you all in the morning lecture, students? बोर्ड के lectures में MEC में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हाँ स्टूडेंट, वो चल रहा है ना हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वहां पे मैंने ये बताया होगा. हाँ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? इज द ऑडियो एंड वीडियो फाइन? Yes. तो बताया ना मैंने वहां पे कि भूल गए सब कुछ. स्टूडेंट्स अभी मैं क्लियरली बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, तुम्हारा बोर्ड्स के भी टॉपिक जो लास्ट वाले टॉपिक से वो हो रहे हैं. थोड़ा सा भी स्मार्ट और वाइज बनो स्टूडेंट्स. ये जो लास्ट के टॉपिक्स है वो अभी हो रहे हैं, बोर्ड्स में भी हो रहे हैं, सर के साथ में भी हो रहे हैं, मेरे साथ में भी हो रहे हैं, पीछे का पोर्शन ऑफ योर फिजिक्स पार्ट ऑफ इट स्टूडेंट्स. और ये एंड ऑफ द सिलेबस की तरफ बढ़ रहा है, और जब भी एंड ऑफ द सिलेबस की वजह तो शायद तुम्हें फील भी होगा कि कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई खत्म करने के लिए खत्म कर रहा है, ये सारी फीलिंग्स आएंगी. तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें, इसको बहुत अच्छी तरह से करने की जरूरत है. तुम्हें नहीं भागना है, यू हैव टू डू इट प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स. यानी अगर कोई चीज इसके रिलेटेड कहीं और भी बोली जाती है तो उसको भी ध्यान से सुनना जरूरी है, और वहां की चीजें यहाँ पे भी ध्यान से अप्लाई करने की जरूरत है. यू कांट से कि दैट इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट, नो. और जितने ये लास्ट टॉपिक्स अभी हो रहे हैं उसके अंदर बहुत कंसंट्रेशन से अगर तुम करोगे ना स्टूडेंट्स, यू विल बी सेविंग लॉट ऑफ टाइम. डोंट जस्ट ट्राई टू रश अहेड विद इट. स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर में से एमीटर और वोल्टमीटर होता है. एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर स्टूडेंट्स, and voltmeter is a high resistance galvanometer. ये है एमीटर और वोल्टमीटर. यानी स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस के साथ में फिजिसिस्ट ने एक लो रेजिस्टेंस वाला
कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, यानी एक लिया लो रेजिस्टेंस, ऊपर से उसको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, तो जो लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया है उसको उन्होंने नाम दे दिया शंट। तो अब ये जो तुम्हारा डिवाइस है, ये जो डिवाइस बन गया है वो डिवाइस हम बोलेंगे एमीटर। ये तुम्हारा डिवाइस है एमीटर। तो एमीटर स्टूडेंट्स इज अ करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो उसके अंदर एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है, उस चीज को नाम दे दिया शंट। वही हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर में क्या किया, गैल्वेनोमीटर के साथ में उन्होंने एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया सीरीज में। अभी ये जो डिवाइस बन गया इसको उन्होंने नाम दे दिया वोल्टमीटर। दिस इज द हाई रेजिस्टेंस एंड दिस वी कंसीडर एज अ वेरी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ा, अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट क्या होगा, कमी होगा ना। तभी जाके स्टूडेंट्स वोल्ट मीटर, ध्यान से सुनना, वोल्ट मीटर कंज्यूम्स वेरी स्मॉल करंट और उसका पर्पस है जस्ट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। उसको उतना ही करंट चाहिए कितना जितना नीडल मूव करे, बस उसके बियॉन्ड उसको करंट की जरूरत नहीं है। शायद मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, वर्किंग ऑफ अ गैल्वेनोमीटर के बारे में। आई हैव टोल्ड यू वेरी क्लियरली विद दैट। तो ये करंट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो व्हाट अबाउट द करंट, सर यहाँ पे करंट बढ़ेगा। और ये पर्पस क्या है एमीटर का, टू मेजर करंट ओनली, तो इट विल अलाउ मैक्सिमम करंट। सुन तभी जाके सपोज मैंने कोई सर्किट दिया, फॉर एग्जांपल मैंने बल्ब दिया जिसको मैं नाम देता हूँ लोड या फिक्स रेजिस्टेंस। फिर मुझे ये बताओ एमीटर कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर कहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स को पता है, भले आप 9th के स्टूडेंट्स हो या 10th के स्टूडेंट्स हो या 11th के 12th, सब लोग बोलते हैं कि हाँ सर वोल्ट मीटर को हम सीरीज में नहीं लेते, वोल्ट मीटर में पैरेलल में लेते। अभी सोचो सपोज अगर तुमने बाय मिस्टेक वोल्ट मीटर को सीरीज में ले लिया तो होगा क्या, तुरंत तुम्हें देखना है सर वोल्ट मीटर सीरीज में आ गया, अरे उसको खुद का रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वोल्ट मीटर का दूसरा नाम क्या है, इट्स अ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। तो अगर वोल्ट मीटर को मैंने सीरीज में कर दिया तो सर करंट फ्लो ही नहीं होगा, मेरा बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। तभी जाके उसकी जगह पैरेलल में होनी चाहिए, एमीटर की जगह सीरीज में होनी चाहिए, क्योंकि वो लो रेजिस्टेंस है। इसका रेजिस्टेंस इतना लो है कि इट कैन अलाउ मैक्सिमम करंट टू फ्लो थ्रू। अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये एमीटर लिया है जिसका ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव, मैंने की को इंसर्ट किया। जैसे करंट यहाँ पे आया, ध्यान से देखना, जैसे करंट यहाँ पे आता है तो जंक्शन है। अगर ये करंट जंक्शन पे आता है तो करंट को दो रास्ते मिलते हैं, वो बोलेगा क्या मैं बल्ब में जाऊं या मैं वोल्ट मीटर में जाऊं। तो वोल्ट मीटर उसको बोलते हैं भाई मेरा रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, बल्ब से भी ज्यादा है, बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स। द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द लो या फिक्स रेजिस्टेंस। तो करंट इसमें बहुत कम जाएगा। कितना जाएगा, जितना नीडल को डिफ्लेक्शन चाहिए उतना ही जाएगा, सिर्फ उसको वोल्टेज मेजर करने के लिए, क्योंकि वोल्टेज द कैलिब्रेशन इज डन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मैक्सिमम करंट तुम्हारे यहाँ पे आएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, दैट्स हाउ द फ्लो ऑफ करंट टेक्स प्लेस। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर क्लियर। तभी जाके एमीटर सीरीज में होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है। अभी इसके मैथमेटिकल रिलेशंस क्यों दे रहा है, मैथमेटिकल रिलेशन बिकॉज क्वेश्चंस आर आस्क्ड और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके प्रॉब्लम्स के अंदर गड़बड़ करते हैं। अभी ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, when you speak about for problems based on to ammeter, students listen carefully. These two are connected in parallel. Let us say the current flowing is I, current flowing in the galvanometer is Ig, current flowing in the shunt I can say it I minus Ig, which can be written as Is. They reunite to give me capital I. क्या ये clear हुआ students? हाँ सर। Current flowing is Ig in the galvanometer, Is in the shunt. So students, can I run total current flowing will be equal to current in galvanometer plus current in shunt? Is this clear? Yes. यस सर। Okay. Now when I speak out to get the formula for what kind of shunt I need to attach with it. Students, तो ये ध्यान में रखना, गैल्वेनोमीटर जो है ना, गैल्वेनोमीटर का खुद का भी एक रेजिस्टेंस है, खुद का रेजिस्टेंस है। I can write on V is equal to R into I. ये जो V है I can write on voltage for the galvanometer. ये है resistance of the galvanometer और ये है current flowing through the galvanometer.
Agreed? Yes. Voltage required for the galvanometer, resistance of the galvanometer, and current for the galvanometer, students. Now listen carefully, students. Suppose if I try to go for the relation in this case, then I've written in terms of your I is equal to Ig plus I, students, we can consider. Now using the relation, can I get the relation for shunt? Can I get the relation for shunt in this case? You'll say yes, why not? We can get the relation of shunt, students. यानी अगर suppose मैं दोनों तरफ students दोनों तरफ divide by Ig करूँ, तो what is my answer? I upon Ig is equal to 1 plus Is upon Ig. क्या ये clear हुआ, students? हाँ Is सर. it clear? Now the answer is now, students. Let us say that the total current flowing in the circuit is n times the current in the galvanometer. Students, क्या ये clear हुआ? Let us say the total current flowing into the ammeter is n times the current in the galvanometer. So what is the current in the galvanometer? I by n. अगर suppose students यहाँ पे मैंने I by n लिया, students यहाँ पे मैंने I by n लिया, what is the current in the shunt? What is the current in the shunt? So can we say? Sir, n minus 1 I. I minus Ig. So I minus I by n होगा. That's the current in the shunt. Agreed? Agreed? हाँ सर. अभी देखो I को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ये क्या होगा? 1 minus 1 by n is equal to Is upon I. Sir, Is. Is that clear, students? Yes. Are you getting it, students? हाँ sir. Now, Yes. if I have to look for I into bracket n minus 1 upon n is equal to Is, which I can substitute on the other side also. Now, if I want to write down what is the formula for current in the shunt, we can consider, sir, V is equal to R into I. We can write down in terms of resistance. I can write on this relation in terms of resistance. I can write on this in terms of resistance. And students, जब तुम derive करोगे तो instantly you can get the answer. And the answer for the shunt, students, S is equal to G upon n minus 1. That becomes your formula for shunt. So what is So G? G is a galvanometer. मैं RG लिखा, चलो इसको मैं G लिखता हूँ मैं. G. G is the resistance of the galvanometer. Okay. Okay, this is the shunt resistance, this is galvanometer resistance, and this is n minus 1. Is that clear to all of you students? ये तुम्हारा मैथमेटिकल रिलेशन होगा टू फाइंड आउट शंट. यानी जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना है. कभी भी पूछेगा व्हाट इज n हो गया, तो तुम क्या बोलोगे? द टोटल करंट फ्लोइंग इज n टाइम्स Ig. सो व्हाट इज n इज इक्वल टू I by Ig. You can consider. Is that clear, students? Yes, sir. Now when I speak about for voltmeter, ध्यान से सुनना, voltmeter में कैसा होगा? सर रफ मत करो. ओह सॉरी, ये यही फॉर्मूला ध्यान में रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. यही फॉर्मूला ध्यान में रख. देख यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला याद करना मालूम है? ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, जब भी इसका क्वेश्चन सॉल्व करना स्टूडेंट्स, सिंपल रूल है, दोनों पैरेलल में. इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 upon G plus 1 upon S. I अगर यहाँ पे Ig जा रहा है तो यहाँ पे कितना होगा? I minus Ig, that is Is. फिर दूसरी बात, let us say the total current flowing in the galvanometer will be equal to n times Ig. So what is n? I upon Ig. यानी n क्या है? We consider is the total current to the current in the Ratio of galvanometer. total current upon current flowing to gallon. Galvanometer we consider. यानी अगर मैं I by Ig को अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा n आ जाएगा, ये n minus 1 आ गया. मुझे n minus 1 चाहिए, रेसिप्रोकल चाहिए, तो I can do inverse endo. फिर इसी को तू सब्स्टिट्यूट कर, you can get your answer accordingly. You can get the answer easily. ये तुम्हारा भी क्या है? वोल्टमीटर में. स्टूडेंट्स वोल्टमीटर में क्या हो रहा है? What exactly? Let us say that the current flowing in the device is Ig itself only. Students, how are these two are connected in series? तो दोनों में करंट सेम ही है. इसमें और इसमें दोनों केस में करंट सेम ही है. Ig is the current flowing to the galvanometer, same current is flowing to the high resistance. लेकिन स्टूडेंट्स अगर ये दोनों सीरीज में है तो कहना से दोनों के बीच में वोल्टमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का अलग होगा. तो कहना से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस will be voltage across the galvanometer plus voltage across the resistance. क्या ये क्लियर हुआ? स्टूडेंट्स पैरेलल के लिए हम लोग ने करंट का फॉर्मूला यूज किया, सीरीज के लिए हमने वोल्टेज ले लिया. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर. Now suppose if I happen to go for your Vg in this case, I'll consider this as V as it is. Are you getting it?
Now, if I happen to go for VG in this case, what is VG I can write in terms of? What exactly can I write VG in terms of it? तो अभी यहाँ yes students, यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे exactly n का factor लेते हैं students. Let us say that the total voltage, please pay attention, the total voltage over here is also n times voltage across the galvanometer. Students, what upon V upon VG is also equal to n. Divide both the sides by VG. This becomes your n. ये तुम्हारा VR है, ये तुम्हारा VG है, ये क्या है? High resistance. V can be written in terms of what? R into I. ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, V को कैसे लिखोगे? R into I. VG को कैसे लिखोगे? G into IG. IG कैंसिल हो जाएगा. स्टूडेंट्स जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट द आंसर इज व्हाट? जैसे यहाँ पे शंट मिला ना, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा द हाई रेजिस्टेंस व्हाट यू कंसीडर्ड इज व्हाट? R is equal to G into bracket n minus. What is n over here? N is the ratio of total potential difference to the potential difference across the galvanometer. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. ये देखो ना, V by Vg क्या होगा? N 1. What is VR? Ig into R. What is Vg? Ig into G. कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा सर? n minus 1 is equal to R by G. मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस चाहिए, तो हाई रेजिस्टेंस क्या होगा? G into bracket n minus 1. जितने भी एमसीक्यूज हो गए ना, मैक्सिमम तुम ये फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाल सकोगे. हमेशा जब भी एमसीक्यूज देंगे, स्टूडेंट विल आस्क यू what should be the high resistance connected in the galvanometer to make the galvanometer into a voltmeter. तो तुम्हें R पूछा गया है. What should be the low resistance connected in parallel to the galvanometer to make a galvanometer into an ammeter? यानी क्या पूछा गया? Shunt. Shunt is a resistance, and the formula for shunt is the resistance of the galvanometer upon n minus 1, where n is equal to I upon Ig. What's the formula to find out high resistance? Galvanometer resistance into bracket n minus 1. Is this clear to all of you? Yes, sir. Can I erase this? No, sir. Sir, no. अच्छा, you said yes sir ना? सर मैं नो बोला था. अच्छा, ये तो सिर्फ मैंने बीच का लिखा था, ये फॉर्मूला था.
Can I agree, students? Sir, 1 minute last. सर Yeah. सर मतलब अगर गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए होंगे तो सर वो एमीटर होगा ना? लेकिन वो पैरेलल रेजिस्टेंस होगा, वो बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है। हाँ सर, और अगर सीरीज में क्या होगा, रेजिस्टेंस हाई वाला तो वोल्टमीटर होगा। यानी जब भी तुम इसके रेजिस्टेंस के बारे में बात करोगे तो शायद तुम्हें मिली ओम्स में भी मिलेगा। कहाँ का भी तुम्हें मिली ओम्स में मिलेगा, माइक्रो ओम्स में मिलेगा, और ये किलो ओम्स में मिलता है। तभी ओके जाके they can ask you an ideal ammeter, students, an ideal ammeter has infinite resistance. ये ध्यान में रखना। An ideal ammeter has infinite resistance and an ideal voltmeter has, sorry, ideal voltmeter has infinite resistance and ideal ammeter has Zero. zero. सर हो गया। सर वो आप लिखने वाले हो क्या, आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्टमीटर? नहीं, you should know it. अभी सिर्फ एक तो क्वेश्चन I just give it to you and then we'll wind up this. इसी के रिलेटेड में क्वेश्चन देना स्टूडेंट्स। सर फिर वो बाद में तो आएगा ना, आइडियल एमीटर वोल्ट, हाँ आइडियल एमीटर वोल्टमीटर बाद में आएगा। नहीं, ये आइडियल प्रैक्टिस के अंदर भी नेवर गो फॉर आइडियल कंडीशंस में लेते हैं। आइडियल तो सिर्फ एक कंसेप्चुअल वे मैंने बोला कि अगर मेरा आइडियल वैसा होता ही नहीं है, कभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कभी आइडियल नहीं होता। सर नहीं, पर एग्जाम में पूछते बोर्ड वाले। हाँ बस स्टूडेंट्स ये ध्यान रखो स्टूडेंट्स, लेट अस गो फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई एम गिविंग यू द ऑप्शन स्टूडेंट्स। A is 24 ohms, okay, B is 36 ohms, C is 48 ohms, and D is 60 ohms. Since question we have students, the deflection in a moving coil galvanometer. Non-system students, the deflection in a moving coil galvanometer. Deflection in a moving coil galvanometer falls from 50 divisions to 10 divisions. Galvanometer के अंदर divisions fall from 50 to 10 when a shunt of 12 ohm is connected across it. When a shunt of 12 ohms is connected across it, the resistance of the galvanometer is. Find out the value of G. Once again, students, the deflection in the moving coil galvanometer falls from 50 divisions to 10 divisions. Kabhi, when a shunt of 12 ohm is connected across it. ये बहुत बड़ा hint दे दिया मैंने। Yes, students, can you get an answer? सर वो डिविजन में समझा नहीं। सोच ना। ओके, अभी ध्यान से सुनो। मैंने कौन सा फॉर्मूला
मुझे बताओ students, क्या फॉर्मूला मैंने बताया था? स्ट्रेट Sir, फॉरवर्ड S फॉर्मूला। equal to G upon N minus. चलो ये तुम्हारे दिमाग में S दिया है, G पूछा है, N क्या होगा? तो N तुम बोलोगे सर यहाँ पे N इज I अपॉन IG, आपने बताया था टोटल करंट द करंट द गैल्वेनोमीटर। अभी ध्यान से सुनना, वापस मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ इसके बारे में। अगेन आई एम स्पीकिंग द स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना। व्हाट एग्जैक्टली स्टेटमेंट इज? The deflection in the moving coil galvanometer falls from 50 divisions to 10 divisions when a shunt of 12 ohms is connected across. हाँ स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या? Norman has put forward the answer. Yes, Norman, बोलो। Norman, can you answer? Yes. बोलो। Current in ammeter will be 50. Yeah, what exactly the value of N is? What is the value of N? 5. 5 आएगा ना, तो क्यों क्यों नहीं समझ रहे स्टूडेंट्स? मुझे ये बताओ, पहले सिर्फ गैल्वेनोमीटर था स्टूडेंट्स। मुझे ये बताओ, अभी ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अगर मैं गैल्वेनोमीटर सिर्फ लेता हूँ तो वो कुछ मुझे डिविजन्स दिखाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ या ना? जैसे तुमने गैल्वेनोमीटर को शंट के साथ में कनेक्ट किया तो उसकी कैपेबिलिटी क्या हुई स्टूडेंट्स? वो डिवाइस की कैपेबिलिटी क्या हुई? वो डिवाइस की कैपेबिलिटी ये होगी कि इट कैन मेजर सम मोर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। करंट मोर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट की रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट ज्यादा, तो नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। यानी स्टूडेंट्स जब भी मैंने शंट को कनेक्ट किया तो वो 50 डिविजन्स था, और अगर मैं शंट को नहीं लूं तो वो 10 डिविजन्स था। कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, हाँ सर। आर यू गेटिंग इट? यानी इफ इन केस इफ आई हैपन टू कंसीडर, ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा मेरा 10 डिविजन्स विल बी IG, 10 divisions will be IG. What about 50 divisions I'll consider will be? If I happen to go 50 divisions, what exactly you consider will be? So that will be equal to I. What is N? I upon IG. 50 upon 10. What's my answer? सिर्फ तो 10 से 50 जाएगा ना डिफ्लेक्शन। हाँ तो पहले मैंने क्या, उन्होंने क्या पूछा है? What is the resistance of the galvanometer? तो galvanometer जब होगा तभी वो 10 divisions पे आता है। यानी जब शंट के साथ में था तो वो 50 divisions दे रहा था, ज्यादा करंट आ रहा था। So now if I happen to consider what exactly N is equal to I upon IG, 50 upon 10, that is 5. So what exactly shunt will be equal to? G upon N minus 1. So what is G? 12 into 4. What's my answer? 48 ohms. क्या ये clear हुआ students? Yes. Is this clear? सर वो एक बार समझाना इनका वैल्यू कैसे निकाल। Students, हमेशा जब भी तुम गैल्वेनोमीटर लेते हो तो क्या वो करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है या करंट डिटेक्टिंग है? डिटेक्ट। तो क्या वो ज्यादा नंबर ऑफ डिविजन दिखाएगा या कम नंबर ऑफ डिविजन दिखाएगा? जैसे मैंने शंट कनेक्ट कर दिया उसको पैरेलल में, तो व्हाट हैपेंस टू ओवरऑल रेजिस्टेंस? बढ़ेगा या कम होगा? सर कम होगा। तो करंट की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ेगा कि कम होगा? सर बढ़ेगा। तो दैट इज 50 डिविजन्स। तो स्टूडेंट्स डिविजन्स को समझना है। तो ये 10 डिविजन्स क्या था? 10 डिविजन्स मेरा IG था। 50 डिविजन्स क्या होगा? टोटल करंट भी कंसीडर व्हेन इट वाज एन एमीटर। ओके। So what is N? I upon IG. Is that clear students? हाँ सर। Okay. Next lectures will be continuing with your further experiments. Some more problems will be doing it. Next lecture में Kirchhoff's law. Okay, students? Yes. यस सर। Bye.